Good afternoon, everybody. My name is Jyoti Sukumar. It gives me immense pleasure to welcome on stage Dr. Mansukh Mandviyaji, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, Government of India. I request the guest of honor for today's function, Shri Malla Reddy ji, our Honorable Minister of Labor and Employment, Factories, Government of Telangana. I request Dr. Rajiv Bahl, Secretary, Department of Health Research, Minister of Health and Family Welfare and Director General, Indian Council of Medical Research, to please take seats. And finally, I request our Director, Dr. Ramchandra S.G., to come on the dais, and let's begin our meeting. Floral welcome and honoring of the dignitaries. Now I request Dr. Rajiv Bahl, DG, ICMR, to present the shawl and flower bouquet to Dr. Mansukh Mandviyaji and welcome him. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Thank you. Now I request DG ICMR to present the shawl and flower bouquet to Shri C. Malla Reddy ji and welcome him. Ladies and gentlemen, taaliyan bajni rehni chahiye. Can we hear it for them, please? Thank you. I request Director ICMR, NARF BR, to present shawl and flowers bouquet to Dr. Rajiv Bahl ji and welcome him. Thank you, sir. And I welcome all the dignitaries on the dais, and I also welcome you all to this event. Can we have a huge round of applause, please? Thank you. As a tribute to Goddess Saraswati, the goddess of knowledge and arts, representing the wisdom, let us light the lamp of wisdom, prosperity, and hope. Now I request all the dignitaries on the dais to light the lamp. Thank you. Can we have the music, please? Namaskar, and I once again welcome all the dignitaries on the dais and the people present here. Now I request our Honorable DG ICMR, Dr. Rajiv Bahl ji, to deliver the welcome address. Thank you. Thank you very much. Mananiya Cabinet Minister, Health Minister Mansukh Mandviyaji, Mananiya Industries Minister Telangana Malla Reddy ji, Dr. Ramachandra ji, and all of you who are gathered here on the auspicious occasion of the inauguration and of this beautiful facility, which is the biggest animal research facility in the country. Not only is it the biggest animal research facility in the country, it is probably the biggest in the world.
and the best, one of the best in the world. It has from small animals, from mice, to every animal, every kind of animal that is used in biomedical research, up to going up to horses. So such facility which exists is truly a national asset. It is the result of great leadership of our Honorable Health and Family Welfare Minister, Mandavya ji. I welcome you all very much, and in the interest of time, I will not say anything more, but welcome to all the dignitaries and all the people who have gathered here on this very great occasion. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request the chief guest, Dr. Mansukh Mandavia ji, to unveil the plaque. There. Thank you very much. I request the chief guest, Dr. Mansukh Mandavia ji, to release the short film on NARF BR. The COVID-19 pandemic was an unprecedented. The COVID-19 pandemic was an unprecedented crisis, but the nation left no stone unturned to battle the numerous challenges that it brought to the fore. The vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi has steered the efforts towards tackling COVID-19 from prevention, vaccination, detection and treatment. To improve the overall health and welfare of the nation, ICMR launches its new institute, NARFBR. The study of animals in biomedical research is critical in discovering causes, diagnosis and treatment of zoonotic and other diseases to reduce suffering both in humans and animals. The National Animal Resource Facility for Biomedical Research under the Indian Council of Medical Research is the apex institute in India to promote ethical care and the use and welfare of laboratory animals during research. Located near Turkapalli in Hyderabad and spread over 100 acres of land with over 20 buildings, the newly built center serves as a state-of-the-art infrastructural facility for ethical animal studies. The center will provide infrastructure under one roof for basic, applied and regulatory animal research in the country. The institute will create processes for preclinical testing of new drugs, vaccines and diagnostics within the country, and also train researchers in the specialized areas of laboratory animal sciences and technology. As the National Reference Center for Laboratory Animal Sciences, the institute will promote international collaboration on quality control norms concerning animal studies. The institute has the potential to make India a key global player in 21st century biomedical research. ICMR NARFBR towards a healthier tomorrow.
Thank you very much, sir, for unveiling the souvenir. Now, I request our chief guest, Dr. Mansukh Mandviya ji, to address the gathering. Can we hear it for sir before he comes and addresses all of us, please? Thank you. देश की सबसे बड़ी एनिमल साइंस लैब यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित यहाँ के विधायक और तेलंगाना सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय रेड्डी जी, राजीव बहल जी, रामचंद्रन जी, सभी उपस्थित भाई एवं बहनों, आज मुझे खुशी है कि हैदराबाद में जीनोम वैली में देश को एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। मैं मानता हूं कि कोई देश को आगे बढ़ना है, कोई सोसाइटी को सरवाइव करना है, तो स्वयं को हमेशा मॉडर्न करते रहना आवश्यक होता है, बदलाव करते रहना आवश्यक होता है। रिसर्च और इनोवेशन ये दो सेक्टर ऐसा है जो देश को सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में टिकने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। आप कोई भी सेक्टर को आइडेंटिफाई करो, सभी सेक्टर में कंपटीशन होती है और कंपटीशन में से रिसर्च पैदा होता है। एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो जिस बिजनेस कर रहा हूँ वैसा ही कोई दूसरा बिजनेस करे और कोई तीसरा बिजनेस करे। जब बहुत लोग एक ही बिजनेस करने में लग जाएंगे तब इस कंपटीशन में उसको टिकना है, तो ये ही बिजनेस में कोई नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम से उसको बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके वो टिक पाएंगे। वैसे ही सरवाइव होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या तो अपना प्रगति का पथ सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम सतत रिसर्च करते रहे। हम सब लोगों ने देखा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस रिसर्च का क्या महत्व होता है, और ये रिसर्च इंडिजिनियस ही होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है, हम सब लोगों ने भली भांति देखा। जब मैं एक घटना का साक्षी हूँ, जब देश में लॉकडाउन लगा था, देश में कई कोविड के केस दिखने लगे, और उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट लोगों के साथ एक मीटिंग की थी। और मीटिंग में जब प्रधानमंत्री जी ने सभी हमारे साइंटिस्ट को कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, उसका उपचार क्या है, तो उसका निष्कर्ष निकल के आया कि अंत में कोविड के सामने परमानेंट लड़ने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए। लेकिन वो नया वायरस था, अननोन वायरस था, उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार तो थी नहीं, दुनिया में कोई भी जगह पे नहीं थी,
और सारी दुनिया यही समय में वैक्सीन के रिसर्च पर लगी थी। और जब दुनिया वैक्सीन के रिसर्च पर लगी थी, ऐसी स्थिति में हमारे देश में, ये तो बहुत बड़ा देश है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, और इतिहास एक घटना का भी साक्षी है कि रिसर्च दुनिया में होता था, वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में होता था, और दुनिया में रिसर्च होने के बाद देश में आने में मिनिमम 5 साल से 10 साल लगता था। और ये समय इंडिया में लगेगा तो क्या होगा? इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन को कोविड क्राइसिस के सामने हम कैसे बचाएंगे? ऐसी स्थिति में मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा था कि आप वैक्सीन का रिसर्च करिए, सरकार आपको हर संभव सहयोग करेगी। जिस लेवल पर जहां भी सरकार के सहयोग की आवश्यकता हो, वहां सरकार मदद करेगी। और इसी स्थिति में मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी पर भरोसा किया। दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल था उसको अवसर देने का, सवाल था उसके पर भरोसा करने का। दुनिया में कुछ होता है तो उसको कोट करते हुए देश में भाषण तो बहुत होते थे, लेकिन हमारे लोग करें और कर सकते हैं, ये तो हमने देखा ही है। हमारे ही साइंटिस्ट, हमारे ही रिसर्च फेलो, आप नासा में जाओ, 10 में से 3 साइंटिस्ट हमारे हैं। अब दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। और दुनिया में कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़ी फार्मा कंपनी में जाओ, उसका मैनेजमेंट में भी आज इंडियन है। ये तो उससे पता चलता है कि इंडिया में ब्रेन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। लेकिन ये ब्रेन पावर को अपॉर्चुनिटी मिले बहुत आवश्यक है। देश में ही अपॉर्चुनिटी मिले, आत्मनिर्भर भारत तहत उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमारे लोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये कोविड क्राइसिस है। दुनिया में फर्स्ट डोज 2020 दिसंबर 2020 यानी कि 20 दिसंबर 2020 में लगा था। उसके बाद बराबर 1 महीने के बाद, 29 डेज के बाद, 19 जनवरी 2021 में दुनिया ने फर्स्ट डोज लगाया 20 दिसंबर 2020 को। और इंडिया ने इंडिजिनियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट डोज 2021 जनवरी 19 को केवल 29 डेज के बाद, 1 महीने के बाद हिंदुस्तान ने वैक्सीन का रिसर्च करके पहला डोज लगा दिया था। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत है, ये हमारी क्षमता है। वैसे ही आने वाले दिनों में आज इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हम देश में 10 से 12 हजार हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज, फार्मा यूनिट है। वो फॉर्मुलेशन बनाता है, मेडिसिन बनाता है। आज दुनिया में कोई भी कंट्री में जाओ, ग्लोबली दुनिया 6 पिल कंज्यूम करती है, तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन होती है। यूएसए में 4 पिल कंज्यूम होती है, तो एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक पिल होती है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हम इंडिया को फार्मा सेक्टर में रिसर्च का भी हब बनाना चाहते हैं। इंडिया में फार्मा सेक्टर में रिसर्च हो। रिसर्च के लिए क्लिनिकल ट्रायल करना होता है, उसके लिए एनिमल फैसिलिटी होना बहुत आवश्यक होता है।
एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी मैं मानता हूं कि इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उपलब्ध हो रही है, मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि यहां हमारे नार्फ में काम करने वाले साइंटिस्ट लोग, यहां काम करने वाले लोग इस इंस्टीट्यूट का बेहतर उपयोग करके देश में प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए, रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और दोस्तों, उसको आगे जाके आज तक रिसर्च का सेक्टर क्लोज सेक्टर रहा है। हमारे आईसीएमआर की कई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के कोई लोग भारत सरकार की आईसीएमआर की रिसर्च को यूज करना, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। दोस्तों, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और नया भारत की सोच है कि देश में रिसर्च और इनोवेशन नॉट ओनली फॉर फार्मा सेक्टर बट ऑल सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए। और ये आगे बढ़ने के लिए सेक्टर को ओपन करना चाहिए। कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना फार्मा सेक्टर के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए रिसर्च करना चाहे तो मैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट सेक्टर को ओपन करना चाहता हूं। इस दिशा में हमने काम करना चालू कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर आके गवर्नमेंट सेक्टर में रिसर्च करे, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर भी क्यों प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता है। हमारी मेडिकल कॉलेज, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज, हमारा नाइपार, इस सबके लिए ओपन हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट या तो एम जैसे इंस्टीट्यूट उसका उपयोग करके रिसर्च सेक्टर में अपना रिसर्च कर सके। दोस्तों, इस दृष्टि से आने वाले दिनों में हमें मेडिकल सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ना है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन ये आने वाले दिनों में एक समय की मांग बन के उभर रहा है। हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक बहुत बड़ी विरासत है। ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, मॉडर्न मेडिसिन हो, ऑल टाइप ऑफ मेडिकल सिस्टम हो, मेडिसिन सिस्टम हो, क्यों वो इंटरनल इंटीग्रेटर के माध्यम से आपस में रिसर्च करें, एक दूसरे का प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। और इसलिए हमने तय किया है कि सभी एम्स में एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए व्यवस्था रखी गई है। वहां रिसर्च को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहां डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा ताकि कौन से इलाज में आपको मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा उपयोगी हो, कौन से इलाज में आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज़्यादा उपयोग हो। एक्सपीरियंस के आधार पर डेटाबेस और डेटाबेस को मेटा डेटा के साथ जोड़ के आने वाले दिनों में रिसर्च और इनोवेशन को कैसे बढ़ावा मिले, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि इस नार्फ का उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। इन नार्फ के माध्यम से देश में वन हेल्थ को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। नार्फ के माध्यम से क्लिनिकल ट्रायल के लिए देश में एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। नार्फ के माध्यम से आने वाले दिनों में फार्मा रिसर्च के लिए
एक नई अपॉर्चुनिटी देश में उपलब्ध हो रही है और इसलिए आज के दिन, आज का अवसर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर के सभी लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेक्टर हमारे लिए डेवलप्ड सेक्टर है, इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आज नार्प के सभी वैज्ञानिक, सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ICMR को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और जीनोम वैली में काम करने वाले सभी फार्मा इंस्टीट्यूट, फार्मा इंडस्ट्रीज भी उसका मैक्सिमम लाभ उठा के इस इंस्टीट्यूट को भी सफल बनाए और स्वयं भी सफल बने ही अपेक्षा। आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सर, आज आपके इन शब्दों ने हमें सिर्फ प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि हमें और बढ़ावा दिया कि हम रिसर्च के दौर में और आगे बढ़े। और जैसे हमें सर ने याद दिलाया कि कोविड के टाइम पे हमने कितना बड़ा रोल निभाया है, तो आप सभी के लिए मैं ज़ोरदार तालियां बजाना चाहती हूँ बिकॉज वी आर प्राउड इंडियंस। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रामचंद्र SG टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। Good afternoon all. See, it's indeed a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on this memorable occasion. In spite of busy schedule, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, accepted our invitation and inaugurated this institute. So your presence today is a great motivation to us. Thank you, sir, for your kind gesture in gracing this event. Our heartfelt thanks to your wholehearted support on behalf of ICMR and NARFBR. So our sincere thanks to Sri Mallareddy ji, Honorable Minister for Labour and Empowerment, Factories, Government of Telangana, for accepting our invitation to grace this prestigious event in spite of your busy schedule, sir. On behalf of ICMR and NARFBR, special thanks to you, sir. So my heartfelt thanks to Dr. Rajiv Bahal ji, Secretary, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, and Director General, Indian Council of Medical Research, for his guidance and encouragement. On behalf of NARFBR, I would like to express my sincere thanks for your guidance, encouragement, support, sir. Our special thanks to the entire CPWD team who built this state-of-the-art animal facilities. Our heartfelt thanks to the local authorities such as ILA, HMDA, HW, SSB, TSS PDCL, Police Department, Fire Department, district officials for providing necessary support in a timely manner. Our special thanks to HMDA, Government of Telangana, for making this campus green under Harita Haram program. Our special thanks to the state government and for extending the support in allotment of land to NARFBR also. I also would like to express my sincere thanks to the media personnel present here. I also extend my sincere thanks to the officials of DHR and Ministry of Health and Family Welfare for extending the timely support. Last but not the least, I thank all the staff members for their unstinting support in organizing this great event. So I once again thank all those who supported directly or indirectly in establishing this institute. Thank you. Thank you very much, sir. I request all the dignitaries on the dais and guests to join us for National Anthem. Can I request everyone to stand in their places for National Anthem, please? Please stay wherever you are. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
शुभ आशीष मांगे